going to discuss diagonal scale. We have already finished the part of that is plane scale. We have already solved the problem of basics of plane scale as well as some advanced problem also. Today we are going to discuss that is diagonal scale. First of all, we should know what is diagonal scale and why it is called as diagonal scale. So diagonal scale is nothing but, I'm just telling that, just writing the definition of the diagonal scale, that is diagonal scale is a scale which shows the relation between diagonal scale is a scale which shows the relation between three consecutive units or which shows a relation between a single unit and its subdivisions. Okay, so this is basically the diagonal scale. One second. It is coming or not? Okay. So this is the definition of diagonal scale. It is what is diagonal scale. अगर हम ये कहते हैं कि what is diagonal scale क्या है, तो diagonal scale is a scale which shows the relation between three consecutive units or which shows a relation between a single unit and its subdivisions. Three consecutive units कहने का मतलब क्या है? What is the meaning of three consecutive units? Means either it is in meter or we can say meter, decimeter and centimeter, or you can say that inch, feet and yard. So this is three consecutive units that is meter, decimeter and centimeter. Or we can say that what is other definition, that is which shows the relation between three consecutive units or which shows the relation between a single unit and its subdivision. What actually that meaning, that is a single unit and its subdivisions means, suppose we have a maximum length of the scale that is 300 meter. This is our maximum, that is maximum length of the scale is equal to 300 meter. How can we divide this 300 meter into three equal units or three equal divisions? That is first, like suppose if it is 300, suppose if I am dividing this 300 into three equal parts, then what we will get? We will get three equal parts, each representing 100 meter, each representing 100 meter. 300 को हम जब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 300 मीटर जो हमारा मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल है, तो 300 मीटर को जब हम तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? टोटल हमको कितना मिल रहा है? हमको तीन इक्वल पार्ट्स मिलेंगे और ईच पार्ट्स जो है वो क्या करेगा? 100 मीटर के लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा. अब अगर हम इस 100 मीटर को फिर 10 इक्वल पार्ट्स में, इफ अगेन वी आर डिवाइडिंग दिस 100 मीटर इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, then what we will get? We will get 10 parts each having the length of 10 meter. पहले हमने 300 मीटर को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमें तीन इक्वल पार्ट्स मिले और हर एक पार्ट का लेंथ कितना होगा? 100 मीटर. अब इस 100 मीटर को अगर हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 10 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे और हर पार्ट्स का लेंथ कितना मिलेगा? 10 मीटर मिलेगा. फिर इस 10 पार्ट को अगर हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें 10 इक्वल पार्ट्स मिलेगा और हर एक पार्ट का लेंथ हमें 1 मीटर मिलेगा. इस तरह से हमने इसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? हमें मिला 100, हमें मिला टेंस और हमें मिला यूनिट. तो इस तरह से हम किसी एक यूनिट के हम डिविजन्स कर सकते हैं, इक्वल डिविजन्स कर सकते हैं. तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल स्केल इज ए स्केल which shows the relation between three consecutive units and or which shows the relation between a single unit and its subdivision. So in this way,
द क्वेश्चन कम्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायगोनल स्केल। हम इसे डायगोनल स्केल क्यों कहते हैं? तो जनरली बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है ये इस तरह के सर इसमें हम लाइंस जो होते हैं मैक्सिमम लाइंस डायगोनल्स दिखते हैं, इस वजह से इसको डायगोनल। ये आंसर एग्जैक्टली नहीं है। इसका एग्जैक्ट आंसर ये है कि डायगोनल स्केल, व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल इज कॉल्ड एज डायगोनल स्केल because it works on the principle of diagonal of a rectangle। डायगोनल स्केल हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। वो प्रिंसिपल कौन सा है? ये प्रिंसिपल है डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। डायगोनल स्केल इज ए स्केल विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्या है? ये प्रिंसिपल क्या है? तो ये प्रिंसिपल ये कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के डायगोनल को, ये रेक्टेंगल हुआ, इस रेक्टेंगल का ये डायगोनल हुआ, तो what is the law of diagonal of a rectangle? The law of diagonal of a rectangle is nothing but if we take a rectangle and the diagonal of a rectangle, if we divide the diagonal into n number of equal parts, by the help of that divisions or by the help of that parts, the base of the rectangle can also be divided into same number of equal parts. This is basically the principle of diagonal of a rectangle. ये क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ये कहता है कि अगर कोई एक रेक्टेंगल है, उसके डायगोनल को अगर हम n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो उस डिविजन्स के हेल्प से हम उसके बेस को भी उतने ही नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यही है प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। कहने का मतलब क्या है कि सपोज ये हमारा रेक्टेंगल है, अगर इस रेक्टेंगल को हम अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हम इस रेक्टेंगल को हमने ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इस डिवीजन के हेल्प से, रेक्टेंगल के डिवीजन के हेल्प से हम इसके बेस को भी उतने ही नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? तो इस जो रेक्टेंगल के डिविजन्स है उसको आप परपेंडिकुलर उसके बेस पे आप ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं तो अब हम ये क्या कह सकते हैं, ये जो बेस है हमारा, ये भी हमारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो दिस इज बेसिकली द लॉ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायगोनल स्केल। इसीलिए इसको हम डायगोनल स्केल कहते हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल पे वर्क करता है। लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि अगर किसी रेक्टेंगल के डायगोनल को हम n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स के, उस सेम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स के हेल्प से हम उसके डायगोनल को भी सेम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अ डायगोनल। सो इसी वजह से हम इसको डायगोनल स्केल कहते हैं। इज इट ओके? फाइन।